नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। सेंट्रल फोर्स फील्ड, इससे रिलेटेड दो वीडियोस आपने पहले देखे हैं जरूर से। ये पूरे टॉपिक को, इस यूनिट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका पार्ट 1 मेनली डील्स विथ विरल थ्योरम एंड एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज इन सेंट्रल फोर्स फील्ड। Part 2 was dedicated to differential equation for central orbit. Now this is part 3, which covers equivalent one body problem. So let us begin with equivalent one body problem. Here the result is the problem of motion of two masses interacting only with one another always be reduced to a problem of the motion of a single mass. एक बार फिर से रीड करते हैं। The problem of motion of two masses interacting only with one another always be reduced to a problem of the motion of a single mass. This result is very important and it has some evidences in astrological science. Suppose मास और कोई प्लैनेट का जब हमको मोशन डिस्कस करना हो तो डेफिनेटली मास ऑफ सन, मोशन ऑफ सन एंड प्लैनेट का जब कोई मोशन डिस्कस करना हो तो डेफिनेटली सन के रेफरेंस में तो वो डिस्कस नहीं किया जा सकेगा। जो भी कुछ करना होगा वो हमें प्लैनेट के रेफरेंस में डिस्कस करना होगा। तो यही एविडेंस को ये रिजल्ट जस्टिफाई करता है कि जब इस तरह से दो मासेस यदि हो तो उनका जो मोशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉब्लम ऑफ मोशन ऑफ सिंगल मास, एंड यस दिस सिंगल मास इज ऑलवेज द रिड्यूस्ड मास of the complete system. So let us see the proof for the result. Let m1 and m2 be the two masses having position vectors r1 bar and r2 bar. अब इमेजिन कीजिए यदि दो मासेस एक ऐसे रॉड पर रखे हो और उनका मासेस यदि अलग अलग हो और उसको हमको बैलेंस करना है यदि, तो बैलेंसिंग होगी। तो जहां बैलेंसिंग होगी, जिस पॉइंट पर बैलेंसिंग होगी दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिपेंड करेगा कहां पर हैवियर मास है और कहां पर लाइटर मास है। सोचकर देखिएगा, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, नियर टू विच मास, हैवियर मास और स्मॉलर मास। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा जरूर से, राइट। So this is center of mass G. अब ये m1 का पोजीशन वेक्टर विथ रेफरेंस टू G इज कंसिडर्ड एज r1 डैश वेक्टर एंड m2 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास G इज r2 डैश वेक्टर। तो ये डायग्राम एक्सप्लेन की है एंड कैपिटल R बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास from origin. Now let us see. Consider a conservative system of two mass points m1 and m2 with position vectors r1 bar and r2 bar respectively. Now such a system has 6 degrees of freedom. Note that 6 degrees of freedom. दो masses है. Because the motion of system consisting of masses m1 and m2 can be thought as made up of motion of center of mass G, center of mass G, and motion about the center of mass. तो जो 6 कंपोनेंट्स है उसमें से 3 कंपोनेंट हम G के पोजीशन वेक्टर के लिए सपोज करेंगे और जो बचे हुए 3 है वो मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास के लिए सपोज करेंगे। सो लेट अस चूज them to be the 3 components of position vector r bar, that is position vector of G,
and three components of difference vector. ये R1 और R2 के डिफरेंस वेक्टर को डिनोट किया R बार से, तो इसके लिए थ्री कंपोनेंट्स. नाउ लेट दिस डिस्क्रिप्शन एज स्टेप 1. Now step 2. The Lagrangian for such a system can be written as L equal to T kinetic energy with reference to vector r का डेरिवेटिव and velocity for g and vector r का डेरिवेटिव, that is velocity due to difference of vectors, minus potential energy which depends on difference, magnitude of difference vector. Let it be denoted by 2, where T of capital R dot comma small r dot is equal to kinetic energy with reference to this velocity capital R dot plus kinetic energy with reference to this velocity small r dot bar. So it is half of m1 plus m2 r डॉट का स्क्वायर प्लस इससे रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अभी हम डिनोट कर देते टी डैश से, वेयर टी डैश is equal to half m1 r1 डैश का डेरिवेटिव हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ m1 r डैश डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 डैश का डेरिवेटिव इसका स्क्वायर, राइट. where r1 dash and r2 dash are the position vectors, with respect to center of mass G. All right. Now this T in 3, इसको नंबर दे देते 4. Now T in 3 is the kinetic energy as the sum of kinetic energy of motion of center of mass plus kinetic energy of motion about the center of mass, which is T dash. Okay. Now we find actual representation for this T dash. So let this be denoted by step 3. The difference vector is r bar, which was r1 bar minus r2 bar
will be equal to r1 bar dash minus r2 bar dash. Okay, but we know that body balances about the center of mass. We know that a body balances about the center of mass. And hence summation of mi into ri dash vector, summation over I, जो भी होगा 1 to, in our case here are 2 particles only, तो summation over I runs from 1 to m is equal to 0. So therefore m1 r1 dash का वेक्टर प्लस m2 r2 dash वेक्टर is equal to 0. Now from this relation we can write from 6 we can write r1 dash इज इक्वल टू, इसको पहले उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस m2 और फिर इसको डिवाइड करते हैं m1 r2 dash vector. When we put this r1 dash in equation 5, तो 5 gives r bar equal to minus m2 upon m1 r2 dash vector minus r2 dash vector. r1 की जगह वैल्यू पुट की है ये, सो दिस इज माइनस कॉमन m2 अपॉन m1 प्लस 1 r2 dash vector. राइट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस इट इज m1 प्लस m2 अपॉन m1 r2 dash vector, so that r2 dash vector will be ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बिकम्स माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r वेक्टर. ओके, तो अभी हमने क्या किया था, r1 डैश को r2 डैश के टर्म में लिखा और यहाँ पुट किया, तो सब कुछ r2 डैश में हो गया और वो r2 डैश की वैल्यू मिली हमको. अब इसी तरह से सेम इक्वेशन नंबर 6 को हम r2 डैश के टर्म में लिखते हैं, विच विल बी इन टर्म्स ऑफ r1 डैश, और फिर उसको यहाँ पर पुट करेंगे. अगेन 6 कैन बी रिटन एज, अगेन 6 कैन बी रिटन एज, अभी हमने r1 डैश के टर्म में लिखा था, अब r2 डैश के टर्म में लिखते हैं, तो देखो क्या होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, सो r2 डैश इज इक्वल टू, पहले ये टर्म उधर जाएंगी, तो दिस विल बी माइनस m1 r1 डैश और फिर m2 डिवाइड होगा, सो वी राइट माइनस m1 अपॉन m2 इंटू r1 dash. Now put this r2 dash again in equation number 5. Therefore 5 imply vector r is equal to r1 dash, ये अपनी जगह है,
माइनस R2 डैश, ये वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है. सो इट इज माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस m1 अपॉन m2 R1 डैश. R1 डैश इज कॉमन, 1 प्लस m1 अपॉन m2 R1 डैश, विच इज m1 प्लस m2 अपॉन m2 R1 डैश. सो यहाँ से हमको R1 डैश मिल जाएगा. R1 डैश वेक्टर इज, इसका रेसिप्रोकल हो गया इधर जाकर, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वेक्टर R. R2 डैश को नाम 7 दिया था, R1 डैश को नंबर 8 दे देते हैं. अब R1 डैश मिल गया, R2 डैश मिल गया. नाउ वी यूज दिस R1 डैश एंड R2 डैश in our expression for t dash, where we need derivatives. तो इसका डेरिवेटिव ओरली किया जा सकता है. R2 डैश का डेरिवेटिव विल बी, दिस इज कांस्टेंट, वेक्टर R का डेरिवेटिव पुट करेंगे यहाँ पर. इसी तरह से R1 डैश का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी लेंगे तो ये कांस्टेंट R वेक्टर डॉट और स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पुट कर देते हैं. तो सब्स्टिट्यूटिंग 7 and 8 in equation 4. Okay, substituting 7 and 8 in equation 4, we get डेरिवेटिव का ध्यान में रखते हुए, राइट. तो वी गेट t डैश इक्वल टू हाफ m1, वहाँ था R1 डैश का डेरिवेटिव पहले, तो वो हो जाएगा माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू R बार, ये हो गया डेरिवेटिव, और इसका स्क्वायर प्लस हाफ m2. उसके बाद था R2 डैश का डेरिवेटिव. यहाँ हमको R1 डैश का डेरिवेटिव पुट करना था. R1 डैश का डेरिवेटिव में m2 अपॉन है. ओके, लेट इट बी करेक्टेड. इट इज m2 अपॉन m1 प्लस m2 R का डेरिवेटिव, ये R1 डैश का डेरिवेटिव है, प्लस हाफ m2 R2 डैश का डेरिवेटिव. तो R2 डैश में नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो रहा है, यस. तो इसका डेरिवेटिव माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 वेक्टर R का डेरिवेटिव और इसका स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज R1 डैश डॉट का स्क्वायर प्लस R2 डैश डॉट का स्क्वायर. नाउ टेकिंग स्क्वायर विल गेट हाफ m1 m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू R डॉट का स्क्वायर, प्लस अब माइनस का स्क्वायर बोलने से प्लस हो गया, हाफ m2 m1 का स्क्वायर न्यूमरेटर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू R डॉट का स्क्वायर. ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है, ये नहीं. कुछ चीज़ें इसमें कॉमन दिखती है. हाफ कॉमन है, m1 m2 प्रोडक्ट कॉमन है, R डॉट का स्क्वायर कॉमन है, और नीचे भी m1 प्लस m2 ये कॉमन है. तो कॉमन पार्ट्स ले लेते हैं. हाफ m1 m2 कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, R डॉट का स्क्वायर कॉमन ले लिया. बचा क्या, m1 पूरा आ गया था, m2 के स्क्वायर में से एक m2 आया, तो यहाँ रह गया m2 प्लस यहाँ से ये सब कॉमन हो गया, यहाँ रह गया एक m1.
अरे तो ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर है और यहाँ इंटू में m1 प्लस m2 है, तो एक m1 प्लस m2 फैक्टर डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर t डैश इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वेक्टर r डॉट का स्क्वायर। नंबरिंग कहाँ तक दी थी? 8, इसको नंबर दे देते 9। ओके, तो टी डैश अभी हमको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया है। अब ये टी डैश को हम पुट कर सकते हैं ये इक्वेशन 3 में, टी में काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशन में पुट कर सकते हैं। तो उसको पुट कर देते हैं, नया स्टेप नंबर दे देते हैं। अभी तक के कहाँ थे हम? स्टेप 3। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4, substituting t dash from 9 in 3 we get 3 में बाकी चीज़ें जैसी है वैसी लिख देते हैं और टी डैश की जगह एक्सप्रेशन पुट करते हैं। तो इट इज़ टी इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 कैपिटल R बार डॉट का स्क्वायर प्लस टी डैश था, यानी ये आ जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू R डॉट का स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब ये m1 प्लस m2 है, इसको कुछ नए नोटेशन दे सकते हैं। हाफ से कैपिटल M R डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको कुछ नोटेशन दे देते हैं, से म्यू R डॉट का स्क्वायर, वेयर ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। इसको नंबर दे दो 10, वेयर व्हाट इज कैपिटल M? m1 प्लस m2 and this is total mass of the system, is the total mass of the system and mu क्या कहे थे हमने? ये mu is m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। this is reduced mass, is the reduced mass of the system, reduced mass of the system। सो अब काइनेटिक एनर्जी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम लैग्रेंजियन में पुट करके लैग्रेंजियन रीराइट कर सकते हैं। वेयर इज लैग्रेंजियन? लैग्रेंजियन इज L इक्वल टू टी माइनस वी। तो लैग्रेंजियन आ जाएगा। लैग्रेंजियन से विल फाइंड लैग्रेंजियस इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, लैग्रेंजियस इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो उसको नेक्स्ट स्टेप में मेंशन करते हैं। अभी तक के स्टेप 4 हो गई। स्टेप 5, नाउ Lagrange's can be expressed as the Lagrange's or Lagrangian can be expressed as L इक्वल टू T माइनस V था, T अभी हमने देखा, ये पुट कर देते हैं। तो T इज हाफ M R डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू R डॉट का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी V विच डिपेंड्स ऑन R। इसको नंबर दे देते हैं, नंबर 11। ओके, तो नाउ from this Lagrangian we can see that
it does not include components of R, capital R. So we can say that derivative of L with respect to R vanishes, and hence the vector capital R is cyclic. तो इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, from which we note that the three components of R bar do not appear in Lagrangian L, in the Lagrangian L, and hence it is cyclic. R vector is cyclic. Therefore del L by del R bar is equal to 0. यहाँ से दिख रहा है, इसमें R वेक्टर है नहीं, कैपिटल R वेक्टर, तो डेरिवेटिव विल बी 0. ओके, नाउ वी फाइंड लैग्रेंजेस इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लैग्रेंजेस कैपिटल R इक्वेशन ऑफ मोशन. पहले पूरा लिखते हैं उसको. डेल L बाय डेल R डॉट माइनस डेल L बाय डेल R इक्वल टू 0. लेकिन ये तो वैनिश हो गया, तो इट रिड्यूसेस टू डेल L बाय डेल R डॉट इक्वल टू 0. Now with the help of relation 11 we find derivative of L with respect to capital R dot. तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. हाफ कांस्टेंट m कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2r डॉट, कैंसिल हो गया 2 से, तो वो रह गया m r डॉट, और बाहर का डेरिवेटिव अपनी जगह पर है इक्वल टू 0. Now this means derivative of some quantity is 0, means the quantity must be constant, means m r dot is constant. Okay, or we can say that momentum conjugate to vector r, momentum conjugate to vector r is constant. Here m is constant, उसको भी डिवाइड कर दिया तो वेक्टर r dot will be constant. Okay, that means तो ये क्या था, कैपिटल R बार, ये था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसका डेरिवेटिव मीन्स हो गई वेलोसिटी, मीन्स velocity with which center of mass moves is constant. इसका मीनिंग हो गया, तो that is velocity with which the center of mass G moves is constant. Okay, तो ये इंफॉर्मेशन हमको मिली लैग्रेंजेस आर इक्वेशन ऑफ मोशन से. नाउ वी कंसिडर सेकेंड लैग्रेंजेस वेक्टर आर इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज डेल एल बाय डेल आर बार डॉट माइनस डेल एल बाय डेल आर बार इक्वल टू 0. इसको इसकी हेल्प से 11 की हेल्प से सॉल्व करते हैं. तो r डॉट यहाँ अपीयर हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा, ये हो गया 0, इसका डेरिवेटिव 0. हाफ म्यू कांस्टेंट 2r डॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो रह गया म्यू
आर डॉट, इसका डेरिवेटिव माइनस, फिर एल को डिफ्रेंशिएट करना है आर बार से। यहाँ पर तो ये है नहीं, यहाँ पर मिलेगा डेरिवेटिव, तो इट इज माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर बार, डेल आर बार, it is vector r, velocity vector r, position vector r, v depends on position vector r equal to, इसके पहले भी कर देते हैं जहाँ आया होगा वो, it is r bar, v r bar, potential energy है, depends on magnitude, ठीक, माइनस ऑफ माइनस प्लस, उधर शिफ्ट कर देते, उधर शिफ्ट कर देते, तो दिस इज, इसको भी this gives derivative of mu is constant, r dot का derivative will become mu r double dot, minus of minus become plus, on right hand side it will become negative, so mu r double dot equal to minus del v by del r bar, and we know that this is nothing but f of r bar, gradient of phi is minus f, तो माइनस साइन यहाँ होने से ये केवल एफ रह जाएगा। नाउ इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन विथ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एज आर बार। ओके, सो we have two Lagrange's equation, Lagrange's R equation of motion and Lagrange's R small r bar equation of motion. Next step, step 6, we observe that none of the equation of motion for r bar will contain the terms involving capital R bar, that is position vector of center of mass, or its derivative. See, this is constant and here no term of capital R, so we can ignore the first term in Lagrangian as given in 11th equation is L equal to half m r dot square plus half mu r dot square minus v r bar. So we can neglect this, so that L becomes half mu r dot square minus v r bar. Okay, yes, नंबर 12। अब यदि इसको हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा कि दिस इज द लैग्रेंजियन फॉर सिंगल पार्टिकल विथ डिस्टेंस आर बार having potential energy V. Yes, it is effective in describing the motion of components of R bar. This Lagrangian given in equation 12 is same as it would be in the case of single particle of mass mu. Yes, this is the reduced mass moving at a distance r from a fixed center of force, which gives rise to potential energy V R bar. Thus, we can conclude that this type of two-body problem can always be reduced to the equivalent one-body problem. So, this completes the proof, and this result has astronomical evidences, particularly planet-sun motion covers this important result. So with this part 3, we can conclude that the central force motion topic unit is now completed.